I guide them about stream selection, course selection, college planning, how they can select their career. A survey by World Economic Forum says that emotional intelligence is one of the top 10 skills going forward. अपनी फीलिंग्स को समझना, एक्सप्रेस करना, एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करना. Yes. See, anxiety तभी होती है when we are uncertain. हमें किसी चीज़ के बारे में या तो हाफ इन्फॉर्मेशन है या है ही नहीं. बच्चे की कुछ और अलग चाह होती है, शायद उसका कुछ और अलग पैशन हो, विजन हो अपने लिए. The main part here is the communication. The more you are receptive of their ideas, the more they will open with you. सोशल मीडिया है, उनका उससे जो डोपामीन रिलीज होता है वो छोड़ने नहीं देता है. You are also watching, no? Why are you saying no to us? कहीं conscious effort हमें ही डालना होगा as an individual. क्या बिलीव है जो इस समय ट्रिगर होता है इस मोमेंट में जब मुझे इमोशंस ट्रिगर होते हैं? अगर आप इमोशंस को वेल मैनेज कर पाते हो, leadership qualities enhance हो, you will be a good team player, you will be a good manager, you are good with your social skills. हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट हैं कीर्ति मेहता. कीर्ति मेहता एक करियर काउंसलर हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी सेशंस देती हैं स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के. और कीर्ति मेहता टारगेट योर सक्सेस की फाउंडर भी हैं. हेलो कीर्ति. Hello, thank you so much for inviting me. यस कीर्ति, आप स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं और फिर उनके इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी, करियर के साथ साथ उनके इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी आप उनके सेशंस लेते हैं. तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है उनको करियर काउंसलिंग के साथ साथ इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. और उनके करियर में कई बार मैंने देखा है कि अगर रुकावट कोई चीज़ आती है तो उनके अपने इमोशंस ही आते हैं. Most of the time. राइट. तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को, सबसे पहले आप अपने बारे में मेरे व्यूअर्स को बताइए. Yeah. So as ma'am said, my name is Kirti. So I am a career counselor. I deal with children, mostly students, high school students. I guide them about stream selection, course selection, college planning, how they can select their career. So majorly conversation रहता है बच्चों के साथ, of majorly age group of 10 to 12 से लेकर till post grad students. So वो आते हैं like whatever they need guidance about their career choices, और कभी skill building की बात रहती है. So most of the time what I came across after counseling so many students, that एक चीज़ जो है वो उनके लिए ज़्यादा मैटर करती है, वो है emotions. Nowadays they find it really difficult to manage their emotions. So I have now started incorporating emotional intelligence for them, ताकि वो emotions को better manage कर पाएँ. And when they are out of the college life, they are entering the corporate world, they are more equipped, emotionally strong to handle the work pressure, जो inevitable है. I mean वो हमेशा रहेगा ही रहेगा. Whichever industry you go to, that will always remain. तो हमें उसको as a person कैसे navigate करना है. Emotional intelligence actually plays a very important role. We somehow never realize it, but it is an invisible engine actually which is pushing us forward in the right direction, I would say. Right. So emotions को notice करना, especially अपने emotions को notice करना, उनको accept करना, identify करना, and how we act, कैसे हम act करते हैं, understanding the emotions of the others, ये बहुत important है. And it is really greatly valued in today's corporate setting. Even the recent survey by World Economic Forum says that emotional intelligence is one of the top 10 skills going forward. Even employers, the CEOs of the companies are also valuing this particular trait in all the employees. So a person who's more emotionally strong, or I would say more emotionally intelligent, is preferred over a person who's less emotionally intelligent, even if they have the same IQ level, or even if they have the same hard skills. So yes, this is something we should start paying attention to. राइट. सो अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन करना हो एग्जैक्टली व्हाट इट इज, तो हाउ वुड यू डिफाइन दैट? सो इमोशनल इंटेलिजेंस, as the name suggests, is about feelings. Though I would not say it's only about soft skills or something like that. Emotional intelligence starts with identifying the feelings. सबसे पहले हम अपनी feelings को identify करना है, समझना है how we are feeling in a certain situation. Right. Then only we'll be able to understand how we will act. Sometimes if someone who's not emotionally aware, जिसे हम बोलेंगे, might act in a wrong way. इस सिचुएशन को शायद वो, कई बार हम भी सोचते हैं कि हम इस सिचुएशन को शायद बेटर हैंडल कर सकते थे, बट वी कुड नॉट बी आर बेस्ट सेल्फ, बिकॉज कहीं ना कहीं वी वर नॉट अवेयर कि हमें रिएक्ट कैसे करना है और मे बी एक्ट कैसे करना है. सो द एक्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, द एक्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन
you know basically is the base of emotional intelligence. खुद को समझना, सामने वाले को समझना, and accordingly you know act करना. Rather than being impulsive, I would say you be intentional. Intention के साथ जब हम कोई काम करते हैं ना, तो there are very less chances that it can go wrong. So it is very much required now, because we all are you know living in a world which is full of instant gratification. You know quick सब चाहिए, सब कुछ fast हो गया है, चाहे वो डिलीवरी एप्स है, चाहे वो कुछ भी है, तो पेशेंस कहीं ना खत्म होता जा रहा है. हाँ. तो we always हमें फटाफट से रिस्पॉन्ड करना होता है चीज़ों को, या रिएक्ट करना होता है. Whereas इमोशनल इंटेलिजेंस आपको क्या सिखाता है कि टेक अ पॉज, notice the things, understand it, and then react. And I'm sure in most of the situation, I would say in almost all situations, you will never go wrong. So yes, it plays a very important part. But ये है कि consciously हमें अपने अंदर से you know उसको थोड़ा जगाना पड़ेगा. हमारे अंदर सबके अंदर है, but कहीं ना कहीं हम realize नहीं कर पाते हैं. राइट. तो इसको अगर डेवलप करने की बात की जाए, easier to say I think but difficult to do, right? तो अगर आप स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं तो यहाँ पर आप उनको क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं? See, I would start with an example, simple. जैसे कि कोई भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर मैं स्टूडेंट के ही एंगल से बोलूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये फिगर आउट करते हैं, बीइंग अ पेरेंट ऑल्सो, या यू नो बीइंग एल्डर्स अराउंड टीनेजर्स, हम ये यू नोटिस करते हैं कि बच्चे बड़ी जल्दी आजकल गुस्सा हो जाते हैं. या फिर अगर हम उनसे कोई सिंपल सी भी क्वेश्चन पूछते हैं, द आंसर बहुत रूडली आता है, बट समहाउ दे आर डीलिंग विद देयर ओन यू नो इश्यूज. समटाइम्स दे शेयर, समटाइम्स दे डोंट शेयर. तो द बेस्ट वे टू डील विद सच यू नो काइंड ऑफ सिचुएशन इज टू just take a pause, you know. Taking a 5 to 6 second pause can really help. Even as an adult also, सबके लिए काम करेगा ये छोटा सा टेक्निक कि आप पॉज लीजिए, just try to identify what you are feeling. मतलब it's very easy to dismiss a feeling कि you know if you say to me कि I'm feeling angry, and I would say नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, but I'm not validating your feeling right now. If I am emotionally intelligent, I would say yes, I am feeling how you are feeling. Take your time, and you know take your time and come back to normal, and then we can talk. Rather than responding just to give solution or just to give judgment is very easy, but responding after understanding is very difficult. So here comes the most important part, I would say, is active listening. जो हम लोग नहीं करते हैं. मतलब हमारा मोस्टली रहता है कि अगर आप मुझसे कुछ शेयर करो या मैं आपसे कुछ शेयर करूँ, तो मेरे दिमाग में मैं आपको सुन तो नहीं रही हूँ, बट आई एम ऑलरेडी यू नो इन माई माइंड प्लानिंग द सॉल्यूशन. राइट. तो पहले तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपको सुनना कि आप कहना क्या चाहते हो. सो आई शुड बी वेरी वेरी मच प्रेजेंट इन दैट मोमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, एंड देन यू नो रिस्पॉन्ड. इवन ऑल्सो व्हेन यू आस्क, समटाइम्स पीपल डोंट नीड एडवाइस, दे ओनली नीड यू टू लिसन. सो इस केस में जैसे बच्चों का हम देखते हैं एग्जाम्पल दैट ईयर, तो एज अ पेरेंट अगर मैं बोलूँ, और मैं भी पेरेंट हूँ, आई ऑल्सो हैव अ टीनेजर एट होम. सो उसमें ये रहता है कि आप पहले सुन लो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, rather than you know passing any judgment or giving them the solution right away. Sometimes backfires. मतलब they only want someone to listen, because then they shut down. हमने देखा है, मतलब we all see as parents also कि बच्चे एकदम shut down हो जाते हैं. वो इसलिए होता है कि उनको वो vent out करने का मौका नहीं मिलता है. और प्लस अगेन हम dismiss बहुत जल्दी कर देते हैं as a parent, and we find it difficult to validate the emotion. पहले तो हम पेरेंट के लिए तो सबसे इजी है इमोशन समझना बच्चे का. अगर वो हम ही नहीं समझ पाएंगे, देन हु एल्स विल डू दैट. सो यस, एज अ पेरेंट हमारा ये रोल है, एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड. I would request, in fact, or because I deal with so many children of this age group, I would only request them to you know start sharing. You know, start sharing and start expressing. Half of the प्रॉब्लम और सिचुएशन तो वहीं पर ही सॉल्व हो जाती है once you share. And who better than your you know parent, someone who you can confide you know in them without any fear. So yes. Right. So you are saying एक तो हमें अपनी फीलिंग्स को समझना, एक्सप्रेस करना, आइडेंटिफाई करना, दूसरों की भी फीलिंग्स को समझना, एम्पैथी कर पाना उनके साथ, एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करना. Yes. राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर. बिकॉज सी अगर ये सब हम लोग अपनी प्रैक्टिस में ला रहे हैं, सो
इन अ वे वी आर बिकमिंग गुड कम्युनिकेटर्स, यू नो, हमारी Right. कम्युनिकेशन स्किल वैसे ही अच्छी हो रही है, एंड वी ऑल नो कम्युनिकेशन स्किल आज की डेट में इज द कितनी प्राइम, यू नो, स्किल विच इज़ रिक्वायर्ड इन एनी सेक्टर, यू नो. राइट। अगर मैं बात करूँ स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, दिस इज़ द थिंग विच कैन टेक यू फॉरवर्ड, or maybe you can, you know, stand out, the way you communicate, basically the way you talk. Obviously everything is interlinked, like you mentioned, you know, motivation and empathy. So ये सब चीज़ें interlinked हैं through emotional intelligence, because उसमें क्या रहता है कि once we are aware what we want and we are validating our feelings, we are trying to regulate our feelings when in a tough situation, so we are already playing our part. If we are able to manage everything inside us well, so obviously it will be difficult for emotions to trigger us. Rather, we will be able to, you know, control them. Obviously it will come with practice. It is not a 1 or 2 day thing. Right. You have to make a conscious effort. Sometimes you have to do some things intentionally. Intention के साथ थोड़ा कई बार करना पड़ता है, rather being impulsive. अगर हम थोड़ा सा इंटेंशन के साथ काम करें, सो हम बेटर रिकग्नाइज कर पाएंगे अपने अंदर के इमोशंस को, और उनको बेटर तरीके से रेगुलेट भी कर पाएंगे इन अ वे, देन ऑब्वियसली हम और एम्पैथी अपने अंदर ला सकते हैं. और आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर मूविंग इन टू अ सोशल सेटिंग. चाहे हम स्कूल में बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, कॉलेज जाते हैं, उसके बाद हम जॉब करते हैं, या कहीं भी अपनी फैमिली में भी, इवन इन आवर फ्यूचर रिलेशनशिप्स, empathy plays a very important part. If you come across as a empathetic person, people will naturally be attracted to you. They would like to talk to you. If you will come across as a rude, bad person, nobody would like to talk to you. Someone who is rudely talking to you is somewhere emotionally triggered but unable to regulate their emotions. Right. You know, तो उनको कहीं ना कहीं उनको इमोशनल कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की ज़रूरत है. एंड ऑब्वियसली अपने ऊपर अपने इमोशंस को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए. Right. पहले तो समझने की कोशिश करनी चाहिए व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ. सपोज आई एम फीलिंग एंग्री, तो मैं उसको अगर एक्सेप्ट ही कर लूंगी कि मुझे गुस्सा आ रहा है, सो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व. समटाइम्स आई हैव सीन पीपल, यू नो, शाउटिंग एंड सेइंग मैं तो गुस्सा नहीं हूँ. I know. आई हैव सीन दैट, बट एवरीबडी कैन सी एंगर ऑन योर फेस. सो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट इट, एंड जब तक मैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं उसको अपने अंदर ठीक नहीं कर सकती. सो दैट इज़ द मेन थिंग. दिस इज़ हाउ वी कैन, यू नो, रेगुलेट आवर इमोशंस. तो आपके पास बहुत काफ़ी स्टूडेंट आते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, उनको फ्यूचर से रिलेटेड एंजाइटी भी होती होगी, राइट? तो ऐसे में जो उनकी एंजाइटी है वो कितना रोल प्ले करती है उनके फ्यूचर डिसीजंस को, एंड देन हाउ डू यू हेल्प देम टू रेगुलेट देयर इमोशंस? सी, एंजाइटी तभी होती है व्हेन वी आर अनसर्टेन. राइट. हमें किसी चीज़ के बारे में या तो हाफ इंफॉर्मेशन है या है ही नहीं. एंड समटाइम्स वी ओनली, यू नो, थिंक वन, यू नो, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं किसी चीज़ को. एंड एज अ स्टूडेंट, इवन इफ इट इज़ अ 9th और 10th ग्रेडर स्टूडेंट, और अगर 11th या 12th का भी बच्चा है, तो सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी उनको ये होती है सोच के कि हम क्या करें आगे, बिकॉज देयर इज सो मच ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नाउ डेज. किड्स आर डिफिकल्ट, यू नो, फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज़ राइट फॉर मी. कहीं ना कहीं they work on half available information. So what we do generally try to approach them through career counseling, but first we identify, help them to identify their personality, कि what kind of a person you are, you know, and then your interest, कहाँ है आपका इंटरेस्ट, कहाँ जा रहा है. ब्लाइंडली खाली मार्क्स के बेसिस पे स्ट्रीम या सब्जेक्ट्स चूज कर लेना, उस टाइम तो आपको दे देगा, यू नो, बेनिफिट. आप अपनी पसंद का शायद सब्जेक्ट भी ले लोगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट एक्टिविटी, दैट सब्जेक्ट, और मे बी दैट चॉइस माइट ड्रेन यू. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड कि what activity or what kind of work energizes me, कौन सी चीज़ से मुझे खुशी मिल रही है. You know, it could be as simple as playing an instrument, but it is giving me happiness. कौन सी चीज़ करने से मैं बहुत ड्रेन हो रही हूँ एक्टिविटी करने से. ऑब्वियसली वो हमें आइडेंटिफाई करना है, सो दैट वी कैन, यू नो, एलिमिनेट दोज थिंग्स विच आर नॉट सर्विंग एनी पर्पज टू अस. सो एंजाइटी लेवल वहाँ पे बढ़ जाएगा जब आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है या क्या अच्छा नहीं लगता है. अच्छा, वो ये चूज़ करा है तो मैं भी कर लूँ, मेरे 98 आए हैं तो मैं ये वाला स्ट्रीम ले लूँ, यू नो. सो यहाँ पर एंजाइटी लेवल, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे अननेसेसरी कंपैरिजंस में हम फंसे होते हैं, एंड विच इज़ नॉट राइट. सारे स्ट्रीम भी हैं, इतना सब कुछ है. सो हमें अपने, मतलब अल्टीमेटली वो हम अपने लिए चूज़ करें, अगर हम कोई सब्जेक्ट चूज़ करें, आगे चल के कोई करियर भी चूज़ करें, दैट इज़ फॉर अस. कोई और हमें कैसे बता सकता है कि हमें क्या अच्छा लगता है.
This is Right. what I always try to tell students who come to me. Figure out what you like. Then I give them exercises कि आप ठीक है, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, do more research on that particular thing. Find out. कोई भी career है, आपको अच्छा लग रहा है, you don't know, you have half, obviously I'll give you and you do your research and then come back, with something which you think is right for me. So I always give that exercise to the child कि आप ढूंढो, मेरे से गाइडेंस लेके आप फिगर आउट करो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है. बिकॉज इफ यू इस टाइम पे ये एक्सरसाइज अगर आपने कर ली इस एज में या इस लाइफ के इस पॉइंट पे, तो आपको ना 10-20 साल बाद वो प्रॉब्लम नहीं आएगी. आई हैव सीन इवन माई सेल्फ ऑल्सो, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ माई एज डूइंग करियर स्विच. मैनी ऑफ देम डू अ करियर स्विच इन देयर मिड करियर लेवल. कहीं ना कहीं वो चॉइसेस इनिशियली उनकी शायद मर्जी की नहीं थी, या it were those choices were pressure driven or whatever it is. But most of them, I have seen a lot of people around me doing that. But I would suggest, क्योंकि अब तब हमारे टाइम पे उतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, बट थैंकफुली अब है. सो यूज द राइट काइंड ऑफ चैनल्स टू गेन इन्फॉर्मेशन. एंड यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के इस फेज में चूज द राइट काइंड ऑफ करियर और अ कोर्स फॉर योर सेल्फ, ताकि आप उसको 10 साल बाद रिग्रेट नहीं करो, आप खुशी से आप अपने प्रोफेशन में एंटर करो. दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज टेल देम. राइट. कीर्ति, कई बार पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के करियर डिसीजन में बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं. उनको लगता है कि उनके हिसाब से बच्चों को करियर का चुनाव करना चाहिए, और बच्चे की कुछ और अलग चाह होती है, शायद उसका कुछ और अलग पैशन हो, विजन हो अपने लिए. तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट आ जाता है और दोनों के अंदर ही एंशियसनेस और ये भी आ जाता है. देन हाउ डू यू गाइड देम टू हैंडल इट एंड फिर अपना करियर चॉइस ले वो लोग? See, that is very natural. Even in 2026, this is still happening. Right. But yes, we need to deal it with very in a patient manner, I would say. Parents का anxiety level अपनी जगह पर valid है, बच्चे का भी valid है. The main part here is the conversation, the communication. वो कहीं ना कहीं missing होता है. Okay. So मैं मतलब आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ सच केसेस जैसे आपने मेंशन किया. सो उसमें यही बेस्ट होता है कि सबसे पहले तो अगर कॉन्फ्लिक्ट है भी या कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट है, अगर पेरेंट डिसएग्री कर रहा है, मोस्टली क्या रहता है उसमें कि उनको उस करियर में सिक्योरिटी नहीं दिखता है, जैसे कि इन फाइनेंशियल टर्म्स में सिक्योरिटी नहीं दिखता, या उनको लगता है कि इस करियर का तो कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर उन्होंने उसके बारे में सुना नहीं होता है. देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ, बिकॉज सी देयर आर मोर देन 3,000 careers nowadays. So because parent is has come from that era जहाँ पर choices limited थे. Right. अभी भी presently लोगों को most even for students also I would say 7 से 8 careers पता होते हैं. अच्छा. Only student? Those which are famous like engineering, doctor, CA, law, उसके beyond पता ही नहीं है. They don't even know how can you mix and match the different subjects to create a career out of it. सो उस केस में अवेयरनेस कहीं ना कहीं मिसिंग है. दैट्स वाई वी कम एज अ पर्सन हु कैन मेक देम अवेयर, बोथ द चाइल्ड एंड द स्टूडेंट, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ठीक है बच्चे ने ये सब्जेक्ट्स लिए हैं, इसका इंटरेस्ट यहाँ है, डू यू नो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में इतने सारे करियर्स हैं. तो दैट कन्वर्सेशन शुड बी देयर. Even if the parent is not sometimes they are not very interested in taking that conversation, because कहीं ना कहीं वो denial mode में चल रहे होते हैं कि, या फिर वो इस मोड में होते हैं कि हम ठीक ही बोल रहे हैं. But my suggestion here is please at least listen to your child. अगर आपको लग भी रहा है कि उसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, या बच्चा कुछ गलत आपके हिसाब से आपको लग रहा है चूज कर रहा है, तो it's better to collectively sit together and understand. For example, music. अब म्यूजिक में करियर है, डेफिनेटली है. देयर इज साउंड इंजीनियरिंग, देयर आर सो मेनी करियर्स. यू कैन प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, यू कैन सिंग. ऑब्वियसली स्ट्रगल अगर हम बोलें इस इंडस्ट्री में, तो स्ट्रगल तो हर इंडस्ट्री में है, बिकॉज कॉम्पिटिशन ज़्यादा है. एंड थैंकफुली अब ऐसा है कि देयर आर सो मेनी एवेन्यूज नाउ डेज. अभी वी हैव रिसेंटली सीन कि गवर्नमेंट ने भी इन्फ्लुएंस को, कंटेंट क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को एक वो वैलिड प्रोफेशन की तरह रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है. मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, इवन इफ इट्स सिंपल ड्राइंग, आप उसमें से करियर निकाल ही लोगे. be it simply teaching it on YouTube. We all know that YouTube is a parallel, I would say, has an earning capacity.
in fact more than most of the corporates. So I'm not saying कि YouTuber बन जाओ, but you should always find out for solutions and the way to put that particular career or that particular domain where you are interested, to find out ways कि मैं इसको आगे कैसे pursue करूँ. आजकल thankfully we have liberal education where we can mix and match, we can choose physics with economics, right? तो वो चीज़ें अब available हैं. बस कमी कहाँ है? अवेयरनेस की कमी है पेरेंट्स के अंदर. पेरेंट्स को लगता है कि 98 99 आ रहे तो साइंस ले लो, 80s में 70s में आ रहे तो ह्यूमैनिटीज़ ले लो, कॉमर्स ले लो. नहीं, मार्क्स के बेसिस पे नहीं डिसाइड कर सकते आप स्ट्रीम. बच्चा क्या, वो ज़बरदस्ती उन सब्जेक्ट्स को पढ़ भी लेगा, पास भी कर लेगा, बट 10 साल बाद 8 साल बाद ये सोचेगा यार मैंने वो चॉइस या वो उस टाइम पे गलत चूज़ कर लिया अपने लिए. And then there is no going back. Those 8-10 years of hard work wasted, money wasted, lot of things wasted. Yes. जब career choices की बात आती है, so the best way to resolve that conflict, जैसे हमने देखा कि होता है, mostly disagreements are there, and the best way is to communicate first of all. एक दूसरे की बात को समझना ज़रूरी है, पेरेंट को भी समझना ज़रूरी है कि बच्चा क्या कह रहा है, rather than उसको straight away dismiss कर देना या उसको acknowledge नहीं करना क्या वो कह रहे हैं. Again यहाँ पे emotional intelligence plays its part. So the more you are receptive of their ideas, the more they will open with you. आप सुनेंगे तो वो आएंगे आपसे बात करने, बट अगर आप उनकी बात को डिसमिस वहीं कर देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे आपसे कुछ भी डिस्कस करने. एंड बच्चे इसीलिए भी दे समटाइम्स मेक रॉन्ग चॉइसेस जस्ट टू प्लीज people around them, parents or somebody. I have come across a few cases कि पेरेंट्स के लिए ही कर रहे हैं, nothing wrong with it. They are also not doing anything wrong. बट कहीं ना कहीं अगर वो और बेटर उस पर कन्वर्सेशन करके डिसीजन लें तो शायद एक बेटर नतीजे पे पहुंच सकते हैं. ओके, दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, बेटा यू आर नॉट लाइकिंग इट, चलो एक बार इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, ऑप्शन बी को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं. लेट्स फिगर आउट हाउ वी कैन मेक इट बेटर फॉर यू. एज अ पेरेंट ये हमारा रोल है, बच्चे को सपोर्ट करना, इनकरेज करना. अगर हमारे पास भी कोई एंग्जाइटी, हमें लगता है कि किसी करियर में नहीं दिख, तो हम भी अपना उनको बता सकते, बिकॉज वी ऑल्सो आर होल्डिंग सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. हमें भी we are also have been working into corporate for so many years. All parents are doing. उनको भी कुछ life experiences है, they can share, rather than only cutting down the conversation. Increase the conversation and try to come at a mutually agreed point, जहाँ पर both the parties, यहाँ पर parent and the child feel comfortable. This is how I deal with it. I always encourage parents to listen to their child, and obviously encourage students also to कि आप parents से share करो. डू योर रिसर्च, उनको बताओ. अगर उनको नहीं पता है तो टेल देम. अगर आप नहीं बताओगे दे विल नॉट कम टू नो. दे डोंट हैव टाइम कि वो एक करियर पढ़ने बैठेंगे. बट क्योंकि आप उस करियर में इंटरेस्ट ले रहे हो, ऑब्वियसली आपको रिसर्च करना चाहिए. उस पर्टिकुलर करियर में जॉब प्रोफाइल्स कैसे होते हैं लोगों को आपको पता होने चाहिए, राइट? सो देन ओनली यू विल गेट डीप डाइव इनटू दैट पर्टिकुलर करियर, एंड आप समझ पाओगे कि मैं इसमें कितना फिट होता हूँ, क्या मेरे लिए सही है. एंड इफ़ यू थिंक क्या मेरे लिए सही है, येस आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, then obviously take confidence, अपने parents का confidence लो, what else. So this is the way, ideal way to deal with such situations, rather than shutting it down and moving in something which is not right for you. True. आजकल के जो बच्चे हैं, यूथ है कीर्ति, उनके अंदर वैसे ही ओवरवेलमिंग एंजाइटी, एंशियसनेस पहले से बढ़ गया है ना. अभी हम अपने इमोशंस को शायद पहले हमें इमोशंस की इतना पता नहीं थी, तो फिर इस बात का समझ ही नहीं था कि क्या चल रहा है. पर अभी जब अवेयरनेस आ गई है तो पता चलता है. और शायद कुछ बहुत सारे फैक्टर्स जिसमें हो सकते हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, पेरेंट्स का कुछ दबाव, वॉट एवर इट इज़ है, मिला करके हमारे इमोशंस बहुत वॉलेटाइल होते चले जाते हैं यूथ के. आप इस इमोशंस का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ देखते हैं बच्चों के अंदर, क्या चल रहा है वहाँ पर, बिकॉज यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू स्टूडेंट्स. एंड अगर आप देखते हो कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज भी कहीं पर उनके इमोशंस जा रहे हैं, देन हाउ डू यू गाइड देम? See, emotions play a very important part. The right kind of emotion can move you to the right direction, but mostly जैसे triggered emotions होते हैं, anxiousness obviously बहुत ज़्यादा है आजकल बच्चों में. The most impacted thing is your decision making. Right. When you take decisions based on your anxiety or fear or something like that, आप
there are a very large chances of taking a wrong decision in that point in time. So उस टाइम पे अगेन अगर मैं बोलूँ इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है पहले, सबसे पहले acceptance and acknowledging what you are feeling, and then trying to regulate it. If I'm feeling angry or I'm feeling anxious, अब अगर उस स्टेट ऑफ माइंड में मैं कुछ भी करूँगी, मैं पढ़ूंगी भी या मैं कुछ भी और भी काम करूँगी, इट विल नॉट गिव मी द रिजल्ट्स आई एम लुकिंग फॉर. कौन सी रीजंस आपको दिखते हैं कीर्ति के बच्चों को होता है इमोशनली डिस्टर्ब? सबसे ज़्यादा nowadays is social media, अच्छा. that constant scrolling over the अच्छा. phone, और वी ऑल आर एडवोकेटिंग, हम सब इस बारे में बात करते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए, या फ़ोन से आपको एक सेट टाइम के लिए उसको यूज़ करिए. हम नॉर्मली इस बारे में डेली बात करते हैं, या हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि आधे घंटे से ऊपर फ़ोन नहीं देखना है. ठीक है, विच इज़ फाइन, बट हमें कॉन्शियसली ये एफर्ट एज अ पर्सन, मतलब अगर मैं बात करूँ, इफ आई एम अ स्टूडेंट, तो मुझे ऐसे कॉन्शियस एफर्ट अपने अंदर डालना ही पड़ेगा कि मुझे वो कंट्रोल करना ही है. बिकॉज अननेसेसरली स्क्रॉलिंग कैन लीड टू ब्रेन फॉग. मतलब ऑब्वियसली आपको सोचने समझने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, बिकॉज योर माइंड इज समवेयर एल्स कॉन्स्टेंटली, एंड for all the wrong reasons. You start finding validation in somewhere else, which is not true. हमें भी पता है it is a virtual world. हम फ़ोन लेकर बैठे हैं, कुछ भी देख रहे हैं for that matter, it's virtual. We don't know the authenticity of the content which we are watching sometimes we watch just for entertainment. I mean, whether it is serving in, which is fine, we can do it, but it should not control our mind completely. So वो conscious effort as a student, as an adult or any other person, हमें डालना पड़ेगा कि हमें, देखो हम बंद तो नहीं कर सकते फ़ोन देखना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, बट हमें उसको कंट्रोल करना सीखना ही पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज इट विल कंट्रोल अस. सो येस, दैट एफर्ट नीड्स टू बी देयर, बट द मेजर रीजन इज दैट डिस्ट्रैक्शन कम्स फ्रॉम constant scrolling, because I have heard, I see a lot of parents complaining about this कि बच्चे जो हैं आजकल फ़ोन को बिल्कुल ही छोड़ नहीं पाते हैं, और दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, समटाइम्स गेम्स और वट एवर इट इज़, दैट कैन, बिकॉज वो क्या है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है उसमें आपको, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन भूल गए हैं बच्चे सीखना. मतलब हम अपने टाइम पर बोर भी होते थे. अब मतलब बोर होना भी मुझे लगता है उतना ही ज़रूरी है जितना ऑक्यूपाइड रहना है, बिकॉज माइंड को खाली हम करेंगे तो माइंड कुछ और सोच पाएगा, बिकॉज माइंड कॉन्स्टेंट फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहता है, कुछ ना कुछ हम उसको फीड कर ही रहे हैं, मतलब इन सम फॉर्म और दी अदर. तो येस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हाँ, यहाँ पर बच्चों को कॉन्शियस एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे कि वो कहीं ना कहीं कंट्रोल उसको, बिकॉज हमने टाइम बिताया है फ़ोन के बिना, हम अभी भी बिता लेंगे अगर हमने एफर्ट डाला. उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही उस गैजेट के साथ हैं. तो येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम, बट येस, कहीं ना कहीं उस पर आपको एक स्टॉप या फिर एक ब्रेक तो लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस एट द एंड ऑफ द डे इन एनी वे. प्लस माइंड विल बी एट रेस्ट, then only you can think of better productive things for yourself. राइट. तो ऐसे में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि देखो वी नो कि ये जो सोशल मीडिया है उनका, उससे जो डोपामीन रिलीज होता है, जो स्क्रॉलिंग है उससे जो डोपामीन रिलीज होता है वो छोड़ने नहीं देता है. हम एडल्ट्स भी अगर स्क्रॉलिंग में आते हैं तो हमको ही नहीं छोड़ने देता है. तो फिर एक स्टूडेंट और जो एक बच्चा जिसने बचपन से ही मोबाइल फोन अपने हाथ में रखा है, उसके लिए बहुत मुश्किल है. तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अपने तरीकों में भी चेंज करना, क्योंकि कई बार पेरेंट्स का जजमेंट होना, बार बार बोलना, और जिस तरीके से वो और ज़्यादा उनको वहाँ पर ही ढकेलता है. तो उनको भी अपने अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करना, ज़्यादा एम्पैथेटिक बन के थोड़ा सा कम्युनिकेशन एंड थोड़ा सा उनको दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करके दूसरे तरीकों से लेके जाना, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स. यस, वही है, मतलब व्हाट वी प्रैक्टिस. बच्चे हमारे ना बातों से कम हमारे एक्शन से ज़्यादा एक्चुअली सीखते हैं. इफ वी आर प्रैक्टिसिंग, इवन माय किड्स आल्सो, यू आर आल्सो वाचिंग, they will straight away tell you are also watching, no, why are you saying no to us. They will not understand कि okay, we are kids, हमारे eyes पे भी इफेक्ट होता है, brain पे भी इफेक्ट होता है, but what they are noticing right now is that you are also doing, so I am also doing, then it's fine. So you have to practice that, जैसे बोलते हैं ना, learning by doing, model yourself. मतलब हमें अपने अंदर भी वो एक चीज़ जो है मॉडल करनी पड़ेगी उनके लिए कि
then only they will come to see, okay, my parents are reading a book, I should also read a book. So anything else, whatever. Right. Maybe a small kind of a dinner table conversations or हम्म, बोर्ड गेम्स जो बिल्कुल ही अब मुझे लगता है तो घरों में पड़ी हुई बट यूज नहीं होती यूज नहीं होती है। बोर्ड गेम्स भी आजकल मोबाइल फोन में, हमने Correct. देखा है, लूडो भी Correct. मोबाइल फोन में चल रहा है, सांप सीढ़ी भी मोबाइल। सो वो कहीं ना कहीं मतलब मोबाइल हाथ से ना जा नहीं रहा है, जा नहीं वो रहा हाथ नहीं रहता है, सो वो कॉन्शियसली आदत ही ब्रेन की जो है थोड़े टाइम बाद हो गई है। वो इतना होता है कि वी ऑल्सो पिक अप टू सी अच्छा कुछ आया तो नहीं, वो एक हैबिट बन गया है, बट वो कहीं ना Right. कहीं कॉन्शियस एफर्ट हमें ही डालना होगा एज एन इंडिविजुअल अक्रॉस ऑल एजेस, आई वुड से। ये नहीं कि बच्चों पे ही वैलिड है, सब पे वैलिड है कि वो कॉन्शियसली हमें थोड़ा सा तो उसको कंट्रोल में लाना ही है, अदरवाइज इट विल कंट्रोल अस। चीजों को स्ट्रक्चर में लेके आना है। वी कैन डिवाइड टाइम, बेटर टू डू इट दैट वेज। इनिशियली इट्स डिफिकल्ट, बट अब अगर उसको प्रैक्टिस में ले आते हो तो वो हैबिट तो बन ही जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट यह है कि स्टार्टिंग में शायद डिफिकल्ट होगा, सबके लिए होगा, मतलब जो भी कोई फॉलो करना चाहता है, बट धीरे धीरे वो आपकी हैबिट में आ ही जाएगा। आपका खुद ही नहीं, कोई भी काम हो, जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं हमने शुगर छोड़ दिया, तो इफ यू डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू इवेंचुअली डोंट लाइक इट। सिमिलर इज द वे ऑफ लॉन्ग कंजम्पशन ऑफ ऑनलाइन कंटेंट। अगर मैं बोलूँ, उसको अगर आप रेगुलेट कर लेंगे या उसको कट डाउन कर लेंगे, तो आप उसके बियॉन्ड आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा फिर फर्दर उसके अंदर। कीर्ति, इमोशंस की एक खास बात होती है, आप कहीं घर पे हो, अपने लोगों के साथ हो तो ज़्यादा आप कैसे भी बह जाते हो, रिएक्टिव मोड में ज़्यादा रहते हो, और जब आपको पता है कि यहाँ नहीं शो करने हैं, अब मान लीजिए बच्चा स्कूल में है या कोई एम्प्लॉय अपने बॉस के साथ खड़ा है, सोशल सिचुएशन में हो, यू नो हाउ टू हैंडल इट। तो मतलब है कि पता तो आपको है कि अपने इमोशंस को कैसे और कब कहाँ एक्सप्रेस करना है, बट लेकिन आपने उसको बहुत सिलेक्टिव रखा हुआ है। राइट। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि देन अगर हम उसको सिर्फ सिलेक्टिवली यूज करते हैं, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग अस, और हमको उसको एक्चुअली कैसे करना चाहिए? सी अगेन राइटली सेड, बिकॉज we generally try to maintain a very cordial image outside the world, चाहे वो हमारा प्रोफेशनल सेटिंग हो या मे बी फ्रेंड सर्कल हो, मतलब आउटसाइड द होम बेसिकली। एंड वंस वी आर इन द होम वी आर completely different. We are very calm and composed with our bosses, our colleagues, and very happy-go-lucky types. And moment we enter, we are like shouting. But this is something which is, I would say, an intentionality gap. कहीं ना कहीं वो intention लेकर आनी है आपको घर पे भी, because they are your loved ones, people at your home, be it your children or your parents, anyone. See, we all feel frustrated at some point of the time in the day. कभी काम का स्ट्रेस होता है, वर्क प्रेशर होता है, विच इज़ वैलिड। घर पे भी जो लोग हैं उनका अपना एक डिफरेंट लेवल का स्ट्रेस होता है, बट इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग दैट, अगेन इमोशंस विल कम, एक्नॉलेजिंग द इमोशंस, एक्नॉलेजिंग द फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग, इंस्टेड ऑफ वी शुड एक्चुअली bring that conscious self inside the home as well. बाहर तो बहुत consciously, even if we are feeling angry from inside, we are putting a smile on our face. We all do that because we maintain an image, and people should not say that this person is not good or he's so rude and he's so bad. तो वो maintain करके चलते ही हैं हमेशा। But कहीं ना कहीं हम जब घर आते हैं या अपने सर्कल में होते हैं, फैमिली सर्कल में होते हैं, we forget that, but वहीं पर ही इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज अगर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, वो तो हम दिखा के आगे रॉन्ग सेल्फ, बट अगर हम कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, बट अगर ये हमको डेली प्रैक्टिस में धीरे धीरे लेकर आएंगे, तो वो हमारी अगेन आई वुड से हैबिट बन जाएगी। फिर हमें कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। हमें पता होगा कि हाँ, जो भी इमोशन हम इस वक्त पे फील कर रहे हैं, हमें उसको कैसे रेगुलेट करना है। फिर चाहे वो फियर भी हो, चाहे वो एंगर हो, सैडनेस हो, कहीं भी फीलिंग्स का क्या है, फीलिंग्स तो आई मीन दे डोंट, वो जगह देखकर तो नहीं आएंगी, मतलब कि आज तो भी ऑफिस में अभी इसको सैड नहीं होना चाहिए तो मैं शाम को आता हूँ, वैसा तो नहीं है। तो वही है, अगेन फीलिंग्स तो कभी भी आपको फील हो सकती हैं, विच इज़ वेरी मच वैलिड। एक्सेप्ट इट, रेगुलेट इट एंड मूव ऑन। ये ऐसे ही सीखना है। बट पीपल हु मैटर टू यू द मोस्ट should also see the other side of you, because otherwise again हम सालों से देखते आ रहे हैं, पापा तो गुस्सा ही करते हैं ना घर आके। I know. बट पापा वैसे गुस्सा नहीं करते हैं, पापा की इमेज वैसी बन गई है
कि हमने जनरलाइज कर दिया बहुत ज़्यादा कि पापा जब ऑफिस से आते हैं ना तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि अब तो डांटेंगे या गुस्सा करेंगे, बट दैट इंटेंशनल सेल्फ शुड कम होम, ताकि सामने वाला भी जो है आपका फैमिली मेम्बर, मतलब दे शुड फील एक्सेप्टेड, दे शुड फील लव्ड, बिकॉज आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो वहाँ इंटेंशन ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन बीइंग इम्पल्सिव। राइट। पर ये इमोशंस जो हैं देर लाइक वेरी मच ऑटोमेटिक भी ऑल्सो, बिकॉज Yes, थॉट yes. से कनेक्टेड कनेक्टेड हैं है, और थॉट हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से आता है और Right. बिल्कुल ऑटोमेटिक आता है और इमोशंस ट्रिगर हो उसके साथ जाते ट्रिगर हैं। हो जाते हैं। यस, और जब गुस्सा अपने आप ही आ रहा है, जब गिल्ट फीलिंग कोई अंदर है भरी हुई और वो बहुत टाइम तक परेशान कर ही रही है, तो सैडनेस का आ जाना, डिप्रेशन का आ जाना, वो बहुत ही ऑटोमेटिक ना एक रास्ता चल रहा है इंसान के लिए, राइट? तो ऐसे में ऊपर ऊपर से अगर हम उसको सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, तो हाउ मच वाइज इट इज़ टू डू दैट? सी देर आर टू वेज टू इट। जैसे कि अगर हम सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, वो है कि अपने इमोशंस को लेके अवेयर होना, बीइंग इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि हम क्या फील कर रहे हैं, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। जैसे भी आपने मेंशन किया कि बढ़ जाना, जैसे किसी भी टाइप के इमोशन का, या फिर वी हैव सीन पीपल मूविंग इनटू डिप्रेशन, जब वो एक कंट्रोल लेवल के बियॉन्ड चला जाए, यस यू नीड इंटरवेंशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, you need an expert to handle it, whomsoever is aware, like psychologists, and we have people who deal with it. तो उस लेवल के बाद when it is something which is beyond your control, you think that I am unable to manage, then you should definitely seek help, राइट। because otherwise that emotion will get मतलब वो हावी हो जाएगा आपके ऊपर, because then it will start impacting your daily lives. So again, emotional intelligence is a starting point, I can say, of identifying कि हम कैसा फील कर रहे हैं, या हमें कैसे रेगुलेट करना है, या अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जो हमारे लिए हमें अभी फेवरेबल या अच्छी नहीं लग रही है, तो हमें उसको कैसे अपने फेवर में लाना है या बेटर करना है, अपने लिए सिचुएशन को चेंज करना है बेसिकली। अगर हम वो कर पा रहे हैं तो वी आर इन अ बेटर पोजिशन टू मैनेज आवरसेल्व्स, बट अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, देन वी नीड अ एक्सटर्नल इंटरवेंशन। राइट। क्योंकि मुझे कई बार ये भी लगता है कि हम मान लो अपने इमोशन को उस समय रेगुलेट हमने करना सीख लिया, पर अल्टीमेटली अगर हमने इस बात को नहीं समझा कि ये इमोशन आया कहाँ से था, राइट, क्या मेरे अंदर किस तरीके का मेरा बिलीफ सिस्टम है जो इन इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है, तो तब तक शायद हम अपने जो वाकई हमें जो इमोशंस को मैनेज करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। वो बार बार ट्रिगरिंग आएगी और हम बार बार अपने आप को उस मोमेंट में पॉज और ये करके हम वी आर डूइंग, बट अगर रिफ्लेक्शन नहीं जा रहा एंड अवेयरनेस के साथ बिलीफ सिस्टम को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं कि क्या बिलीफ है जो इस समय ट्रिगर होता है इस मोमेंट में जब मुझे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, तो हम प्रॉपर इमोशंस को इंटेलिजेंस की तरफ ले नहीं जा पाएंगे। हाँ, उसमें यह है कि यू नीड टू देन ऑब्जर्व योर पैटर्न्स। हाँ, राइट। जैसे कि हमारे थिंकिंग पैटर्न्स कैसे हैं, या फिर हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स कैसे हैं, वो कॉन्शियस एफर्ट डाल के आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा कि इज दिस समथिंग विच इज ट्रिगरिंग मी, क्या मुझे इस बात पे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या फिर इस बात से मैं ज़्यादा सैड हो रहा हूँ, क्या है वो चीज़ क्या है, या वो कोई सिचुएशन है, या कोई ऐसा पास में कोई ऐसी इवेंट है जो ट्रिगर करता है मेरे लिए, एनीथिंग, इट कुड बी सैडनेस और एंगर और एनीथिंग और गिल्ट और फियर। तो वो पैटर्न्स को पहले तो ऑब्जर्व करना, ऑब्वियसली यस। अगेन इफ यू थिंक इट इज गोइंग बियॉन्ड कंट्रोल, देन ऑब्वियसली यस यू नीड सम एक्सपर्ट इंटरवेंशन। मतलब उसको इट्स बेटर नॉट टू इग्नोर इट, बिकॉज अब थैंकफुली पीपल आर मोर अवेयर, दे हैव स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग इश्यूज। तो पहले भी थे ही, लेकिन अब लोगों ने उसके बारे में बात करना शुरू किया है, लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस भी आ रहा है कि यस आई नीड हेल्प, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। बट यस, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको लगता है कि समथिंग विच इज यू आर अनेबल टू मैनेज, जैसे हम भी हैं, हम ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, खुद तो हम पहले दवाइयाँ खा लेते हैं, बट लगता है कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, तो फिर हमें डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर देगा हमें प्रिस्क्रिप्शन कि आप ये दवाई खाओ। सिमिलर गोज विद दिस, जितना हम फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं उतना ही मेंटल हेल्थ, बिकॉज मेंटल हेल्थ इन अ वे फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट करती है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करती है। ट्रू। तो ऐसे में अगर हमारा एक स्टूडेंट है जो प्लान कर रहा है
आगे करियर, राइट? तो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस अगर वो डेवलप कर लेता है तो उसको कहाँ कहाँ हेल्प होगी इमोशनल इंटेलिजेंस देखो, डेवलप? इमोशनल इंटेलिजेंस इज विल प्योरली हेल्प यू बिल्ड ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स. यू नो, अगर आप इमोशंस को वेल मैनेज कर पाते हो, आपकी टीम कोलैबोरेशंस जैसे लीडरशिप क्वालिटीज इनहेंस होंगे, आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यू नो, यू विल बी एबल टू मैनेज वेल, you will be a good team player, you know, you'll be a good manager because you know how to handle people, you are good with your social skills, you know how to network well. Once you are, you know, even if people who want to move into business, they must have good social skills. आपको लोगों से बहुत इंटरेक्ट करना पड़ता है, आपको एक एक साथ में लोगों को लेकर चलना पड़ता है, नेटवर्किंग करना पड़ता है. सो इन अ वे इमोशनल इंटेलिजेंस पे अगर आप काम कर रहे हैं, यू नो हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू डील विद पीपल, बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड इन एवरी प्रोफेशन. आपको हर प्रोफेशन में डील करना है लोगों से, चाहे वो आपके बॉसेज हैं, चाहे कोलीग्स हैं या आपके जूनियर्स हैं. यू आर डेली डीलिंग विद पीपल एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल. If you are a good manager, you are a good leader, obviously it will give you a better push in your corporate ladder. और in fact I would say, अभी मैं recently एक article भी पढ़ रही थी, तो उसमें यही mention था, मतलब it was about leadership qualities basically. So उसमें भी मैंने यही पढ़ा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे आपको ये डेवलप करने में हेल्प करता है कि आप लोगों को कैसे बेटरली कम्युनिकेट कर पाते हो लोगों से. और इट इज़ द मोस्ट वैल्यूड स्किल going forward in because corporates also are realizing nowadays कि this is something which they need. Ultimately प्रेशर आएगा, वर्क प्रेशर आएगा, आप डील नहीं कर पाओगे तो आप उस कंपनी के लिए फिर यूजफुल नहीं हो ना. देर नहीं आती है तो प्रेशर में परेशान हो जाता है या कर नहीं पाता है काम, या इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. सो देन यू विल नॉट बी एन एसेट, बिकॉज वो इनएविटेबल है. ये कुछ चीज़ें हैं जो वर्क लाइफ में आपके कभी ना कभी आती जाती रहेंगी, बट दे शुड नॉट इफेक्ट यू. अगर आपने वहाँ पर अपने इमोशनली स्ट्रॉन्ग सेल्फ को पोर्ट्रे किया या यूज़ किया अपने इमोशंस को प्रॉपरली, सो आप वो फेज से भी निकल जाएंगे एंड यू विल इट विल मेंटेन योर मोटिवेशन लेवल्स एज वेल. नहीं तो कहीं ना कहीं हम फिर ये फील करने लगते हैं कि मे बी आई एम नॉट गुड फॉर द जॉब, और मे बी एक अननेसेसरीली आपको अगेन एंग्जाइटी ट्रिगर होने लगती है कि मेरे से तो हो नहीं रहा. वो कहीं ना कहीं इमोशंस आर प्लेइंग देयर पार्ट. Better to understand them, regulate them, and use the feeling in your benefit, I would say. उस तरीके से उसको आपको मैनेज करना है कि आपको कोई भी टफ सिचुएशन बिल्कुल हरा ना सके. ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, ये इट कैन नॉट बी लाइक द सेम लेवल ऑल द टाइम. इट विल गो डाउन, यू विल कम अप. वो डाउन से अप आने में ही आपको आपके इमोशनल रिजिलियंस बहुत हेल्प करता है. सो द बेटर यू वर्क ऑन इट, एंड इट कैन बी लर्नड एट एनी एज. ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं अब नहीं सीख सकता हूँ, मैं 40 का या 50 का हो गया नहीं सीख. यू कैन लर्न इट एट एनी एज. इट ओनली नीड्स कॉन्शियस प्रैक्टिस, दैट्स इट. बट एज के साथ मैंने देखा है कि इसको सीखने की थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, थोड़े से पैटर्न्स हमारे जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. तो फिर हम जो है उसको उस तरीके से अगर कोई बहुत ऐसे लोग हैं जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ है और जो हर समय लर्निंग को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, तो फिर वो ऑब्वियसली वो तो लर्न कर लेते हैं अगर उनको समझ में आ रहा है कि दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट टू लर्न. बट अदरवाइज एक एज के साथ जो ऐसा लोगों के पैटर्न्स बहुत फिक्स हो जाते हैं, देन इट इज डिफिकल्ट क्योंकि वो देख ही नहीं पाते कि व्हाट इज मिसिंग देयर. इंडिविजुअल कैपेसिटी, राइट. अगेन मतलब वही, अगर मैं बोलूँ एक्सेप्टेंस, द फर्स्ट स्टेज इज ओनली एक्सेप्टेंस. अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कोई चीज़ अपने अंदर ठीक करनी है, सो मैं उसको इग्नोर ही करूँगी. ऑब्वियसली इट इज़ मोर, आई वुड से एट एन इंडिविजुअल लेवल यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पर अगेन यू सेट की पैटर्न्स सेट तो हो जाते हैं, सालों से सेट हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, बट अगर हम कॉन्शियस एफर्ट्स लगाएंगे तो हम उनको चेंज कर सकते हैं. येस, अगेन यू हैव टू ओपन योर लर्निंग माइंड एंड सी दैट दैट दिस इज रिक्वायर्ड. ये चेंज की ज़रूरत है. राइट. अगर हमने उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो ही हम उसे चेंज कर पाएंगे. सो कीर्ति, हम इतनी देर से इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं. आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं. आप उनको कोई ऐसा टूल या फ्रेमवर्क देते हैं जो उनको हेल्प करे इसको प्रैक्टिस करने में? Yes, it's my favorite. I always share with them. In fact, it's applicable to everyone. हर कोई इसको यूज़ कर सकता है.
I have named it here HEAR. So H is like hold space, give space. अगर आप किसी कन्वर्सेशन में हैं कि किसी के भी साथ, give them space, listen to them patiently. Only listen to understand, not to reply back or respond. Then is explore. See, अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए, अगर आपको कुछ और जानना है और समझना है, या आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ के समझिए कि सामने वाला क्या कह रहा है. देन एक्नॉलेज. अगर कोई आपके पास आया है, बच्चा है आपका फॉर एग्जांपल कि मुझे डर लग रहा है मेरे मार्क्स कम आएंगे, फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. सो आपको एज अ पेरेंट क्या करना है? होल्ड स्पेस, एच, उसको बोलने दीजिए, समझिए वो क्या कह रहा है, रादर देन उसी टाइम सॉल्यूशन देने की कोशिश मत कीजिए. पहले समझिए, उसको पूरा बोल लेने दीजिए. बोलते हुए अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं समझ आए आपको और डीपली उसको अंडरस्टैंड करें, देन एक्सप्लोर, ई, क्वेश्चंस पूछ लीजिए एक दो. अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसा क्यों कह रहे हो, वट एवर इट इज़. देन कम्स ए, एक्नॉलेज. उस इमोशन को वैलिडेट कीजिए. ये नहीं कि आया कोई डरने वाली क्या बात है इसमें. एक्नॉलेज, यस आई अंडरस्टैंड दैट यू आपको डर लग रहा है अभी, यू आर यू हैव अ फियर इन माइंड, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड द इमोशन. ये 3 स्टेप्स आपने कर लिए, HEA. देन कम्स आर, रीडायरेक्ट. आर इज वो आपका लास्ट स्टेज है कन्वर्सेशन का, जहाँ पे आप देन उनको एडवाइस देंगे. ये तीनों स्टेप्स के बाद ही आर इज इफेक्टिव. अगर मैं बोलूँ तो अगर हम आर पे ही पहले जंप कर जाते हैं, बेसिकली हम एच भी नहीं करते हैं और हम सीधा कुछ आया बच्चा बोलने, हमने पूरी बात भी नहीं सुनी, उसको सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर दिया, या उसके इमोशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया. अरे कोई डरने की बात नहीं, क्या हो गया, मार्क्स कम आएंगे तो, विच इज़ फाइन. बच्चा तो डर रहा है, वो अपना इमोशन लेके आया, सुन लो बस. 90% ऑफ द प्रॉब्लम तो वहीं ख़त्म हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, आई वुड से. तो दैट फ्रेमवर्क HEAR इज़ वेरी हेल्पफुल इन एनी कन्वर्सेशन. चाहे आप बच्चे से कर रहे हैं, किसी कलीग से कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर से कर रहे हैं, पार्टनर से कर रहे हैं. दैट सिंपल हेयर फ्रेमवर्क इफ़ यू कीप इन माइंड कि मुझे उसको स्पेस देना है बोलने के लिए, उसको पूरा सुनना है, नहीं समझ आ रहा है तो 1-2 क्वेश्चंस पूछ के समझ लेना है, एक्नॉलेज करना है उसकी फीलिंग को, एंड देन इफ़ रिक्वायर्ड देन सॉल्यूशन देना है मुझे. या अगर वो मुझसे कुछ पूछ रहा है, एडवाइस मांग रहा है, या मुझे ऐसा लगता है कि आप इस सिचुएशन में ऐसा करो, जो भी मतलब आप लास्ट में उसको कहना चाहते हैं. दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल. आई यूज़ इट समटाइम्स एंड आई इंसिस्ट पीपल टू यूज़ इट बिकॉज यू विल सी अ चेंज. आपके बात करने का जो एक रहेगा मेथड रहेगा, वो बदल जाएगा और बेटर हो जाएगा. द कन्वर्सेशंस विल बिकम बेटर, द कम्युनिकेशन विल बिकम स्ट्रॉन्ग, एंड एट द एंड ऑफ द डे बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर. अगर आप मेरे से बात करते हो या मैं आपसे बात करती हूँ, आपको मुझसे बात करके अच्छा लगता है, सो एक हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है. आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, बट इफ़ यू विल डिसमिस वट एवर आई एम सेइंग, या आप मेरी इमोशन को वैलिडेट नहीं करोगे, या बोलोगे अरे कुछ नहीं होता है, ऐसा गलत लग रहा है, आपने तो जजमेंट दे दिया, बट वो पर्सन क्या आपके पास दोबारा आएगा? नहीं आएगा. सो दिस इज़ द वे वी शुड कॉन्शियसली उसको अपने उसमें लाना चाहिए. तो मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगी. H, हेयर, सुनना अच्छे से, पूरी तरीके से, होल्ड स्पेस. H इज होल्ड स्पेस, एंड हेयर भी हो सकता है, आप सुनो अच्छे से, है ना, दोनों हो सकता है, राइट. ए, यहाँ पर E इज एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोर करो व्हाट इज गोइंग ऑन, उसका पूरा अच्छे से सुनो, बाय आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ लो 2-3, राइट. एंड ए इज एक्नॉलेजमेंट, और जो भी वो फील कर रहा है, जो भी वो गो थ्रू कर रहे हैं, उसको एक्नॉलेज करो, एंड जस्ट से I can understand what you are going through, right? Yes. And then is the emotion is valid. Emotion is valid, yes. right? And then is R is redirection. दोबारा से उनको जहाँ पे भी वो हैं वहाँ से थोड़ा सा redirect करने की कोशिश करो. और उनको अगर रिक्वायर्ड है तो आप उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं, if you have solution in mind, या एडवाइस कर सकते हैं how to better deal with the situation. Right. So this is how it will help. This can be very helpful जब इंसान अपने खुद के इमोशंस को भी एक्सप्लोर कर रहा है, कि खुद को पहले एक बार तो एक्चुअली अपने लिए स्पेस को होल्ड करे, अपने आप को सुने कि क्या इमोशन से मैं गो थ्रू कर रही हूँ, है ना. दैट्स वेयर द जर्नलिंग हेल्प्स अ लॉट, कि आप अपने इमोशंस को लिख लो, तो आप उसके लिए एक स्पेस होल्ड कर रहे हो. बिकॉज आप अगर लिख भी लेते हो, आई फॉरगॉट टू मेंशन, इन फैक्ट यू मेंशन, जर्नलिंग हेल्प्स बिकॉज व्हेन यू राइट समथिंग ऑन पेपर, कुछ भी ट्रिगर कर रहा है, कुछ इमोशंस हैं, इट्स आउट ऑफ योर माइंड एक्चुअली. अगर हम उसको पाइल ऑन करते रहते हैं अपने माइंड में चीज़ों को, आज 4 चीज़ें, कल 4 और ऐड हो जाएंगी, सो इट गेट्स पाइल्ड अप. इंस्टेड ऑफ पाइलिंग अप इन द माइंड, राइट इट ऑन द पेपर, बिकॉज आई ऑल्सो डू इट एंड इट इज़ इफेक्टिव. इट्स वेरी इफेक्टिव, डेफिनेटली.
So yes, we can use it for ourselves, rightly mentioned. We can try. एटलीस्ट वी कैन ट्राई एंड We never आफ्टर know what ट्राइंग works ही for हमें you. हाँ सही बात है एंड आई थिंक ये बहुत ही फेबुलस है बहुत हेल्प करेगा राइट तो हमने बहुत डिस्कस किया नाउ एट द एंड ऑफ द हमारा डिस्कशन व्हाट वुड यू लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस Very simple to, I would tell it only in one sentence. Be intentional, don't be impulsive. Acknowledge your feelings, accept them, and try to regulate them. Because at the end of the day, it's you dealing with yourself. Okay, nobody is there in your shoes. कोई आपकी जगह पे उस चीज़ से डील नहीं कर रहा है जो आप डील कर रहे हो. कहीं ना कहीं sooner or later आपको ही उसे मैनेज करना है. Before it turns into something बियॉन्ड कंट्रोल, आप उसको पहले ही आइडेंटिफाई कीजिए, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए. और लाइक आई रिसेंटली मेंशन्ड अबाउट हियर, यूज़ कीजिए उसको अपने कन्वर्सेशंस में. जहाँ आपको लगता है कि कन्वर्सेशन मुश्किल हो सकती है, ट्राई टू यूज़ इट एंड सी द चेंज. एंड एट द एंड ऑफ द डे, बीइंग इमोशनली स्ट्रॉन्ग इज़ एक्चुअली समथिंग विच वी ऑल नीड. बिकॉज हम ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पे सब चीज़ें बहुत ही फास्ट और क्विक हैं. और रुकने का, पॉज करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है लोगों को. मतलब सब भागे जा रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं. थोड़ा सा पॉज कीजिए, रुकिए, सोचिए, देन एक्ट कीजिए. दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से. थैंक यू सो मच कीर्ति, इट वाज अ एक्चुअली नाइस कन्वर्सेशन विद यू. मज़ा आया करने में एंड आई होप मेरे व्यूअर्स भी बहुत सारे टेक अवेज लेके जाएंगे. Thank you so much for inviting me, and I also liked, sharing my opinion, and I hope it helps the real listeners, to get some idea about emotional intelligence and practice it on a daily basis. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए. फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है.